अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी बयान। कहा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कार्रवाई की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। हम अमन में शराकतदार होंगे, लड़ाई में नहीं। उन्होंने अमेरिका से भी मुतालबा किया कि अफगानिस्तान छोड़ने से कबल सियासी हल निकाले। कहा, अफगानिस्तान में जो भी अवामी हुकूमत होगी हम उससे बात करेंगे। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. सरहद मिशन के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, कप्तान का दो टोक ऐलान। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बयान कर दिया। कहा, पाकिस्तान अब किसी भी महाज आराई का हिस्सा नहीं बनेगा, अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं देंगे। The Americans, before they leave, there must be a settlement. Any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Pakistan suffered 70,000 casualties, more than any other country, by joining the American war. We cannot afford any more military actions from our territory. वजीर आजम ने वाज़ेह किया, जो कोई भी अफगान अवाम की नुमाइंदगी करेगा उससे बातचीत करेंगे। As far as Pakistan is concerned, whoever represents the people of Afghanistan, we will deal with them. उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से राब्ते और CIA चीफ से मुलाकात की तरदीद करते हुए जवाब दिया, अमेरिकी सदर के पास टाइम होगा तो वो खुद राब्ता कर लेंगे। CIA चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Is there a reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here to Islamabad. Why? Ever since 9/11, there's constantly been touch between our intelligence agencies. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. वजीर आजम ने कहा, अफगान जंग का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। 70,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। इस वक्त भी पाकिस्तान में 30 लाख से जायद अफगान पनाहगज़ीन मौजूद हैं। अमेरिका चाहे तो मसला कश्मीर हल हो सकता है, वो इस मामले पर फाल किरदार अदा करे। वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू में मुतालबा। उन्होंने मकबूजा कश्मीर पर मगरबी रवैये को मुनाफिकाना करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है। उन्होंने चीन को पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त करार दिया। US has a big responsibility. Most powerful nation in the world. We are held hostage to one dispute in Kashmir. The Americans have the resolve, the will. This can be sorted out. वजीर आजम ने अमेरिका से मसले कश्मीर पर फाल किरदार अदा करने का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मगरिब के रवैये को मुनाफिकत पर मबनी भी करार दिया। Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant compared to what might be going in the Urigas. 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have literally, it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. उन्होंने वाज़ेह किया कि जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। जौहरी प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है। Pakistan's nuclear arsenal is simply as a deterrent to protect ourselves. I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes. उन्होंने चीन में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर अपनी लाइल भी जाहिर की। चीन को पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त करार दिया। China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling,
Our economy was struggling. China came to our rescue. اسلامو فوبیا سے متعلق سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے بعد یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا مغرب اور ہماری ثقافت پہ بہت فرق ہے. خواتین کے نامناسب لباس سے مردوں پر اثر پڑے گا. یہ کلچرل امپیریلزم ہے. مغرب کو ہمارے کلچر کو تسلیم کرنا چاہیے. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. I mean, it's common sense. It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. It's not. اللہ کی ذات پر یقین اور بروقت اقدامات سے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پایا. وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو میں کہا کہ کورونا کے دوران شروع میں لاک ڈاؤن لگایا لیکن دہاڑی دار طبقے کی مشکلات کے پیش نظر صرف ہاٹ اسپاٹ والے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا. In Pakistan by all other politicians, leaders, opposition, we should total lockdown like it was happening in Italy. Even though I kept asking what will happen to our poor people who are daily wages. 70%, 75% of our workers are in the informal economy. We had this control and command center where we accumulate daily all data coming from Pakistan. So we got the Pakistan Army involved, all the provinces involved. We would get daily data and they were monitoring the whole thing. And what we did was we would have these hot spots where there was and we would try and lock them down. But we did not lock down everyone. ملک میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی کا رجحان جاری ہے. 907 نئے کورونا کیسز کے ساتھ مثبت کیسز کی شرح 2.6% ریکارڈ کی گئی. چند روز سے تعطل کا شکار ویکسینیشن مہم آج سے دوبارہ شروع ہو گئی لیکن بیرون ملک جانے والے افراد کو لگائی جانے والی ویکسین تاحال موجود نہیں. ملک میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی. 907 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 2.6% ریکارڈ. 30 افراد زندگی کی بازی ہار گئی. ادھر چند دنوں کے تعطل کے بعد ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل شروع لیکن سست روی کا شکار. تمام صوبوں میں سائنو ویک کی ڈوزز پہنچا دی گئی ہیں لیکن چھوٹے شہروں اور ویکسینیشن سینٹرز پر تاحال کمی ہے. لوگ شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. پتہ لگا کہ وہ سائنو فارم کی سیکنڈ ڈوز ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. نیکسٹ منڈے کا ٹائم دے رہے ہیں. صبح سے ہم ادھر پھر رہے ہیں. بوڑھے آدمی ہیں کیا کریں. 1-1.5 گھنٹہ ادھر بٹھایا ہمیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس ویکسینیشن نہیں ہے اور بند کر دیا اور ہمیں بھیج دیا. بہت لوگ پریشان ہیں. ہم صبح 7-6 بجے آتا ہے اور دوپہر شام کو 4-5 بجے جاتا ہے واپس لیکن ویکسین ابھی تک ہم کو نہیں لگایا. بیرون ملک کام کرنے والے آج بھی پریشان نظر آئے کیونکہ ملک بھر میں ایسٹرازینیکا بھی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو واپس لوٹایا جا رہا ہے. ہم جا رہے ہیں سعودی عرب اور یہاں آئے ہیں تقریباً 10 بجے تو انہوں نے کہا بھائی وہ ختم ہو گیا ہے ایسٹرازینیکا. نیازی صاحب خود کہہ رہے کہ ہمارا سرمایہ ہے جو سمندر پار پاکستانی ہے تو ان کے لیے الگ کاؤنٹر بننا چاہیے تاکہ اس کو مشکلات نہ بنے. ابھی ان سے پوچھا ہے کہ باہر کے لیے کون سی جگہ لگ رہی ہے وہ بھی نہیں بتا رہے. چیئرمین NCOC اسد عمر کے مطابق آئندہ 10 روز میں مزید 50 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ جائیں گی جس سے ویکسینیشن کے عمل میں تیزی آئے گی. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں خونخوار کتوں نے واک کرنے والے شہری پر حملہ کر دیا. کتوں نے ایڈوکیٹ مرزا اختر علی کو بری طرح بھنبھوڑ ڈالا. واقعے کی CCTV فوٹیج آج نیوز کو موصول ہو گئی. کتوں کے دونوں رکھوالوں اور مالک کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ زخمی وکیل اختر علی نواز کو اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے. شہر قائد جہاں آوارہ کتوں سے شہری محفوظ نہیں، آئے روز کتوں کے کاٹنے کے واقعات پیش آتے ہیں. شہر میں اب پالتو کتوں کے حملوں کے واقعات بھی رونما ہونے لگے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں. CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیفنس فیز 6 خیابان راحت اور شہر کے قریب خونخوار کتوں نے واک کرنے والے ایڈوکیٹ مرزا اختر علی پر حملہ کر دیا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتے شہری کو بری طرح کاٹ رہے ہیں.
कुत्तों का रखवाला घर के बाहर कुत्तों को बगैर रस्सी के घुमा रहा था। पुलिस के मुताबिक वाकया 16 जून को रूनुमा हुआ। कुत्तों के दोनों रखवालों और मालिक के खिलाफ दरख्शां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमान फहद और अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुत्तों के मालिक हमायूं खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले अख्तर अली नवाज को निजी अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बड़े लोग माने या ना माने सिंध में बेहतरीन काम हुए, लेकिन हम वावेला नहीं करते। कुछ कुव्वतें पार्लिमानी निजाम पर हमलावर हैं। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। सिंध असेंबली एडिटोरियम में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई माने या ना माने सिंध में काम हुआ है। बड़े बड़े लोग माने या ना माने इस सूबा में काम हुआ है। इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुजदार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज पाकिस्तान में गवर्नेंस, डीरेल, इदारे, यरगमाल और अवाम सफ़ा कार्टेल्स के रहम करम पर हैं। कुछ कुव्वतें पार्लिमानी निजाम पर हमलावर हैं। जो वफाकी अंदाज से इस्लामी जमहूरी वफाकी पार्लिमानी निजाम से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन सारे सूबों को जोड़ा है, उन पे कुछ ताकतें, कुछ सियासी जमातें, कुछ लोग हमला आवर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो नया पाकिस्तान बन रहा है उसमें अवाम से सब छीना जा रहा है। बजट में सूबे के हक पर डाका डाला गया, कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की तकरीर पर वफाकी वज़रा ने शदीद रद्द अमल दिया। वफाकी वजीर उमर अयूब ने पूछा, बिलावल भुट्टो एनएफसी के मिलने वाले 1900 अरब रुपए का हिसाब दें। अली ज़ादी ने कहा, आज वो सिखा रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने माफिया करार दिया। फर्रुख हबीब ने कहा, पीपल्स पार्टी अब तक तरक्याती बजट का 60% भी खर्च न कर सकी। बिलावल भुट्टो बताएं, एनएफसी के 1900 अरब कहां खर्च हुए। वज़रा के कौमी असेंबली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। उमर अयूब ने कहा, न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग ने लाखों के नहीं अरबों के टीके लगाए। दोनों साहिबान साहिब इख्तिदार भी रहे हैं, पार्टी साहिब इख्तिदार रही है। खांचे इनके लगे हुए थे तो रोज 24 रुपए था, खांचे निकले तो उसी सिस्टम में साल के अंदर अंदर 6.5 रुपए पे आया। 295 अरब रुपया जीआईडीसी का किधर गया। अली ज़ैदी ने कहा, वो हमें गुड गवर्नेंस की बातें सिखा रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने माफिया और गॉडफादर करार दिया। Stand here and deliver speeches in English to impress their Western masters. I hope going forward sanity will prevail and such third-class behavior by members, some of who have been termed as a Sicilian mafia and godfathers by the Supreme Court. फर्रुख हबीब ने ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की नाअहली का ये आलम है कि इस साल तरक्याती बजट का 7% अभी तक खर्च नहीं कर सकी। रियासत मदीना पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम आग को सिंध के अवाम को लूटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। बदतरीन ममालिक में भी लोग कुत्ते के काटने से नहीं मरते। आज हालत ये है कि दुनिया के ऐसे मुल्क जहाँ पे बदतरीन गवर्नेंस हो, वहाँ पर भी कुत्ते के काटे से उतने लोग नहीं मरते जितने कुत्ते के काटे से सिंध में लोग मरते हैं। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि उसके बाद अपने गिरेबान में देखने की बजाय रियासत मदीना के ऊपर तनकीद की जाती है। रियासत मदीना पंजाब में, जीबी में, केपी में, फेडरल में बना रहे हैं। जल्द ही इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी बनाएंगे और फिर अगली बारी सिंध की है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, पहली बार किसी हुकूमत ने बजट में गरीबों का सोचा है। हमारे पास डॉलर छापने की मशीन नहीं, IMF के पास जाना पड़ा। साबिक हुकूमत ने मईशत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हमारी तवज्जो मुल्क की बरामदात बढ़ाने पर है। इसको आप जाली बजट कहते हैं कि ये एक गरीब आदमी के लिए पहली दफा किसी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोचा। 28 से 30 अरब डॉलर को पे करना था तो क्या हुआ, IMF के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं। काबिल लीडरशिप थी इमरान खान की, उन्होंने उस वक्त भी वो ऐसे इकदाम किए जिसके बीच में कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया, जिसके बीच में उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, और उससे यह है कि इकॉनमी फिर से उठना शुरू हो गई।
मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कौमी बिजली पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत ओपन बोली के जरिए सस्ते जराये से मंसूबे लगाएंगे। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी बिजली पॉलिसी 10 साल के लिए है, मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पावर सेक्टर के मसाइल ज्यादा हैं, जिनमें गर्दिशी कर्जा भी शामिल है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो पास कर दी है, यानी कि कौमी पावर पॉलिसी जो हमारी है, कौमी बिजली की पॉलिसी, लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे सबसे कम प्राइसिंग के ऊपर ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए, यानी कि खुलेआम बिडिंग के जरिए इन जो है वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव भी किए जाएंगे या डिसअप्रूव किए जाएंगे। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू है, 10 साल की पॉलिसी है, तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म अपने लोकल फ्यूल्स को डेवलप करने की पॉलिसी भी इसमें वज़ा की गई है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद अब आज के साथ रहिए।